Welcome to BCommerce Academy online learning program. The topic of the day is G20, which is most important topic for all upcoming examinations of UPSC, and we have seen questions in the previous examinations of UPSC. So, India is hosting G20 summit in 2023 for 1 year. That's why the topic is so important for us in all upcoming examinations of UPSC as well as state examinations for 1 year. The theme, what is the theme? Theme of G20 2023 is, what is the theme? Vasudev Kutumbakam, which means one earth, one family, and one future. And Vasudev Kutumbakam, taken from Vasudev Kutumbakam कहाँ से लिया गया है? तो it is taken from महाउपनिषद. यही क्वेश्चन CDS 2023 में भी पूछा है कि भाई ये कहाँ से लिया गया इसका थीम. तो वसुदेव कुटुंबकम is the theme of G20 Summit 2023, which means one earth, one family, and one future. Okay, next, what are the invited nations? Invited nations. इंडिया किन किन नेशंस को इनवाइट करेगा? इंडिया कौन कौन से नेशंस को इनवाइट कर रहा है? सो इंडिया इज इनवाइटिंग टू बांग्लादेश. India is inviting to Egypt. India is inviting to Mauritius. India is inviting to Netherlands. India is inviting to Nigeria. India is inviting to Spain. India is inviting to Singapore, and India is inviting to the UAE. But here the most important fact is that Spain is the permanent invited nation. Permanent invited nation. स्पेन इज द परमानेंट इनवाइटेड नेशन. स्पेन को हमेशा इनवाइटेड नेशन में रखा जाएगा. ये इसके पास एक प्रिविलेज है, एक अपना विशेषाधिकार स्पेन के पास है. ओके, एंड नेक्स्ट, द नेक्स्ट फैक्ट इज द ट्रोइका नेशन, ट्रोइका ग्रुप. इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट for all upcoming examinations. By because all Troika countries are the developing countries in 2023. All Troika countries are the developing countries in 2023. And here, what is Troika? So first, I need to mention here that all Troika nations are the developing nations. And what is Troika here? So in nutshell, Troika is the past, the present, and the future of the G20. How? Okay, let me clear here that Troika is the past, the present, and the future of G20. How? Past means the country which hosted G20 in the last year, i.e. in 2022. So which country hosted G20 in 2022? So Indonesia
hosted it in 2022. That's why Indonesia is the past of G20. And what is the present? So the country which is hosting G20 in the present year, i.e. 2023. So which country is hosting G20 in 2023? India. So that's why India is the president of G20. And future means the country which is going to host G20 in the upcoming year, i.e. 2024. So which country is hosting G20 in 2024? So Brazil. That's why Brazil is the future of G20. So G20 is, Troika is the group of nations which represent the past, present, future of the G20. And it is the first incident in the history of G20 that all the Troika nations are developing countries. Developing nation, Indonesia is also developing, India is also developing, and Brazil is also developing. Brazil भी क्या है? Developing है. Okay. So these are the most important facts for this year. It was established in 1999 after the economic crisis of 1990s. 1990s के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, which hit to the East Asia and South Asian countries, जिन्होंने ईस्ट एशिया और साउथ एशियन कंट्रीज को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया था. That's why the aim behind the establishment of G20, इसी के लिए G20 के एस्टेब्लिशमेंट के पीछे जो गोल है वो क्या है? गोल इज टू अचीव ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, with the middle income nations. मिडिल इनकम नेशंस के साथ मिलके एक ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव करना ही क्या है? गोल है, एम है G20 का. ठीक है. एंड G20 represent 60% of the world's population. G20 ग्रुप 60% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड के. 80% ऑफ ग्लोबल जीडीपी. ये ग्लोबल जीडीपी के 80% जीडीपी को ग्लोब के पूरे अर्थ के पूरे वर्ल्ड के रिप्रेजेंट करता है. एंड 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड. All three facts are the most important facts regarding the G20. पहले जो G20 60% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, 80% वर्ल्ड की जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है, एंड 75% वर्ल्ड के ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है. ये पेपर फर्स्ट के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा है. तीनों फैक्ट हो सकते हैं. नेक्स्ट, हाउ G20 वर्क्स. सो प्यारे बच्चों, हियर वी नीड टू नोट इट हियर, वी नीड टू मेमोराइज हियर दैट G20 हैज नो सेक्रेटरीट. इसका कोई अपना सेक्रेटरीट नहीं है, कोई सचिवालय इसका नहीं है. तो काम कैसे करता है? तो प्यारे बच्चों, इट वर्क्स या इट ऑपरेट इट्स agendas and work with the coordination of representatives of the members with, और जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर्स हैं उनको क्या बोला जाता है? कई बार आप इसको सुनते भी होंगे, which are called
who are called the शेरपा, उनको हम शेरपा बोलते हैं, उनको क्या बोला जाता है, शेरपा बोला जाता है। और यहां ध्यान रखना है with the governors of नेशनल बैंक्स, जितने भी कंट्रीज इसकी मेंबर कंट्रीज हैं उनके नेशनल बैंक्स के गवर्नर्स। और नेशनल बैंक क्या होता है, जैसे इंडिया में आरबीआई नेशनल बैंक इंडिया का है। एंड द फाइनेंस मिनिस्टर्स, यहां इसको हमें ध्यान रखना है कि अपने एजेंडा को और अपने काम को कैसे ऑपरेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स, जितनी मेंबर कंट्रीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से, जिसको क्या बोलते हैं, शेरपा बोलते हैं। और विद किसके माध्यम से, किसकी हेल्प से, गवर्नर ऑफ नेशनल बैंक, सभी मेंबर कंट्रीज के नेशनल बैंक की गवर्नर के माध्यम से और उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स के माध्यम से। क्योंकि प्यारे बच्चों इसका मेन गोल क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव करना, मेंटेन करना और उसको बनाए रखना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं G20 के विषय में, G20 के बारे में। देखिए G20 अपकमिंग एग्जामिनेशंस, क्योंकि लास्ट कुछ एग्जामिनेशंस में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आने वाले यूपीएससी के लगभग सभी एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन बन सकता है। सीएपी में असिस्टेंट कमांडेंट जो एग्जाम है उसमें सेकंड पेपर में रिपोर्ट इससे पूछी जा सकती है। और जो मैंने इसको जिस क्रोनोलॉजी में आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्रोनोलॉजी जिसको रिपोर्ट को ही फॉलो कर रही है, रिपोर्ट के फॉर्मेट को फॉलो कर रही है, तो आप इसमें रिपोर्ट भी लिख सकते हैं। ओके, यू कैन नोट डाउन ऑल दीज फैक्ट्स, आप इन सभी फैक्ट्स को लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट देखेंगे व्हाट आर दी 20 मेंबर्स। वो 20 मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो आइए उनको भी देख लेते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए, 2020 यानी इन 2020 सिविल सर्विसेज प्री में इसके मेंबर्स पूछे गए कि कौन कौन से इसके मेंबर्स इनमें से हैं। So there are 20 countries: Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Korea, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, the United Kingdom, the USA, yani United States of America, and the European Union. These are the 20 members of G20. So here you need to note down that Indonesia, that India and Brazil are the members of Troika nations for 2023 and here ठीक है 2023। और यहाँ एक चीज ध्यान रखना है, जो G20 का समिट लास्ट जापान में जो हुआ था उसको ओसाका बोला जाता है, ओसाका में हुआ था, ओसाका सिटी, दैट्स व्हाई उसको ओसाका समिट बोला जाता है। और एक काफी फेमस यहाँ ओसाका डिक्लेरेशन भी था, ओसाका डिक्लेरेशन, वो भी काफी चर्चाओं में, पेपर के लिए इंपोर्टेंट भी है। तो ओसाका डिक्लेरेशन कुछ ई कॉमर्स कंपनीज के डाटा से कुछ संबंधित है, तो इंडिया ने इसको साइन नहीं किया था, इंडिया डिडंट साइन इट, इंडिया ने इसको साइन नहीं किया था बिकॉज इंडिया एम्फसाइज ऑन द डाटा सॉवरेनिटी, इंडिया डाटा सॉवरेनिटी पे एम्फसाइज करता है। तो इंडिया ने इस ओसाका डिक्लेरेशन का सिग्नेटरी इंडिया नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ओसाका